Okay, so now we have good morning all of you once again. Now we have another participant today who are going to give a PPT presentation on the lost spring. So the name of the participant is Samriddhi Mishra. Okay, Samriddhi, let's start. Okay, sir. So good morning to all of you. Myself is Nritya Mishra and I am going to represent a PPT on the Lost Spring from a Flamingo book written by Anis Jung. So first of all, I want to tell you something about the author. Anis Jung was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in USA also. Her parents were both writers. Aniston began her career as a writer in India itself. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. So now, theme of the chapter, what this story basically wants to tell. So the Lost Spring contains two stories. First, sometime I find a rupee in the garbage, and second, I want to drive a car. So this story basically deals with the poor and sad condition of the children who forced to do hard work for their survival due to their critical social economic condition. They are economically not well balanced, so they don't have any proper opportunity for schooling, and because they don't have proper schooling facility, they can't compare for a good job. Anas Jung, the writer, tries to take the children out of this deplorable world and child labor. She propagates the education of children and enforcement of a strict law against child labor by the government. By this chapter, she tries to put an end to child exploitation and let children enjoy their days of spring and joy. So, the characters of the story. In first story, we have Sahabe Alam, a boy about 15 years. He was a rag picker, and in second story, there was a boy who is the son of a bangle maker. So the short summary of the story, sometime I find it in the garbage. This part tells about the writer's thinking about the life of a rag picker. The story of a boy, Sahabe Alam. He was a rag picker and and his family and about 10,000 rag pickers migrated from Dhaka in Bangladesh to Simapur in search of food and roof. Due to flood or due to some other condition, they are unable to live there and they all migrated in Delhi. When author meets a group of women, they uh, they don't have any proper identity and they don't have any proper cards for getting food. So they said, if at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we should rather live here than in the field that gave us no grain. It means they want to live in Simapuri without any identity because they just want meal of two times. Sometimes the people living there thought garbage as a survival because by selling the garbage they collected, they spend their livelihood there. But for the children like Sahabe Alam and other of his age, it was a wrapped wonder. It means they sometimes find beautiful things in the garbage, like sometimes skirt rupees, any other things of his interest. After some time, when author meets Sahabe Alam, Sahabe was currently doing a job in tea stall and get 800 rupees salary and full day meal. And he carries a steel canister in his bag, but currently he was under a master and he don't have any his own independence and he has to follow the rules and instructed by his master. So he don't have any his own freedom and he is no longer a master of his own. Now, the second story, I want to drive a car. In, in second part of the story, author encounters with Mukesh who wants to become a motor mechanic. Mukesh was a man who works in a small mechanic garage. He has a dream to become a motor mechanic, but his dream looms like a mirage to the author because his dreams was unable he was not
so capable to fulfill his dream due to his critical economic condition. He lives in Firozabad, who was famous for bangle making. In Firozabad, about 20,000 children exploiting their eyesight in hot furnaces in spite of government orders. Then, when author went to Mukesh's house, Mukesh's grandmother said that it's a destiny, or it's a destiny to do that work. Then author went there in a hot furnace center she saw a woman who said that एक वक्त शेर पर खाना भी नहीं खाया. It means they don't have proper facility, they don't have proper uh, uh, survival things to get proper food. Uh, this all consequences show that how poor the condition of the workers who are living in Firozabad. This all example shows by the author shows that they are in so critical condition. Then author gave an idea to the workers living there that why won't they form a cooperative and replace the middleman? But the people living there said that we won't able to do this work because the policeman or the other people prove them illegal, and they have no other choice for working as a worker in bangle making. At last, Mukesh clears his motive to the author that he wants to become a motor mechanic, and he shall be. Then, some similarities between the both characters in the story, Sahabe Alam and Mukesh. Mukesh and Sahabe Alam both belong to impoverished section of society in India. Both of them are forced to do child labor. Both of them are child labor. Sahabe Alam is a rag picker who earns his livelihood by picking garbage from garbage yard near Simapuri, where Mukesh is forced to work in a glass blowing cottage industry unit in pathetic working condition in Firozabad. So some difference. Mukesh is different from Sahabe Alam in a sense that he has an ambition of becoming a car mechanic. He wants to become a car mechanic, which was quite bleak chances of becoming a reality. Political, administration, and economic condition are quite discouraging of Mukesh. That's why he was not able to become. Was not more chances of becoming a motor mechanic. But Sahabe Alam don't have such dream or ambition. He is happy. He is not so happy and satisfied, but he should do his job of in tea stall. Quintessence, or we can say conclusion of the lost spring, what we draw from the story. This story basically tells how the lives of poor children and their family exploited every day. Means basically how they impossible living of the life. Caste system is also a very important role in this chapter, because due to caste they can't receive education and believe that it's their fate to do labor and live a life doing what their parents do. Means they don't have proper knowledge, proper education facility. That's why they believe it as their destiny to what they are doing, they have to do it. They won't complain because they're affected and trapped by the middlemen and police who beat them if they go against them. They can't complain against them. They don't have any against them because they are trapped by the middlemen and their thinking ability was just trapped. Life for them is just a miserable and very little is being developed. Means uh, they don't have a proper life and miserable and they are not developed since ages. Current situation of pickers in India. Around 3 lakh children forced to beg. Means in Delhi streets or in different states, children are forced to beg and collect some money. According to the National Crime Recordings Bureau (NCRB), a total 63,407 in 2016, 63,349 in 2017, and 67,134 in 2018 are children who were forced to beg on the street. And the highest number of missing children are of Madhya Pradesh 10,038, West Bengal 8,205, Bihar 6,950, Delhi 6,541, and Tamil Nadu 4,271 for the year 2018.
Means these are the number of children who are missing in the year in particular states. Many of the missing children are pushed into begging and never found. Means the begging mafias or just trap the children in such a way that they are not able to get out from this and they are never found. Predators used to give them drugs, used to beat them. They used to give this type of threatening to make the children scared and do whatever they want. They have to collect the money and show and give them to the culprits. So initiative taken by government to control it. What are the steps that government used to take to control the situation? The ministry informed the House that they are implementing the Integrated Child Protection Scheme (ICPS) to create a secure environment for the children who rescued from the begging trap. Means those children who are luckily got found by the police, they have they have integrated child protection scheme where they used to send them and make their life little better. The child rescue committee then send the children in CCI where they get sufficient knowledge and other necessities to reintroduce them to the mainstream profession and society. Means basically, though those children got found by the police, they sent to CCI where they get necessities and other proper things that they want to give their life a better chance. Not only government, people should also be aware about this and help the children in every possible way to come out of this mental trauma and get normal to natural surroundings. Yes, it is the right point that not only government, even normal people are the citizens of a country should also be a little bit aware about this situation, and they also find and they also help the children by their possible way to come out of this trauma and to help them to become a natural person. Thank you. Okay, so please all of you unmute yourself and now we have a question answer session. आप सब अपने आप को unmute कर लीजिए and if anybody wants to ask any question from the participant, then please one by one ask. Otherwise, I have jotted down few points and I have also few questions to ask to her. So it's my request to the audience first. I'll just give chance to the audience first to please raise questions. Whatever she has presented in her PPT, though the contents are very good in quality. So, but still there are something which we have to point out for the betterment in upcoming future. So starting from the Usha. Usha, are you here? Usha, are you audible? We are audible to you. Hello. Hello. Usha? No, she is not here, I think. Divyanshi? 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 Yes, sir. Divyanshi, do you want to ask any Yes, sir. question? Do you want to ask any question from Samriddhi? Please just take 5 minutes. I'll give all of you 5 minutes to ask question. Then I'll just try to depict some points. कुछ पूछना है आपको? Be quick. No, sir. नहीं पूछना है. आपने पीपीटी सारी देखी इनकी? ये बीच में से ऐड हुई हैं आप? Yes, sir. Okay, so you don't have any doubt. Okay, fine. Shreya second. Shreya second. Are you here? Yes, sir. Please Yes, ask some sir. question. Please ask some question. I think you are a good listener, so I expect that you have at least few questions to ask. कुछ क्वेश्चंस पूछिए इनसे, इनके पीपीटी में से कोई आपको ऐसा पॉइंट नजर आ रहा हो जो क्लियर नहीं है, आप उससे फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं. Nothing. Please give your response. Be quick because we don't have that much time, na?
Within 40 minutes, this meeting will end automatically. कुछ पूछना है आपको? Nothing. सर पूछना है 1 मिनट। Please जल्दी पूछिए. Samriddhi, are you ready to give answer? Yes, sir. Okay, fine. Samriddhi, I don't understand the difference between the Mukesh and Sahib-e-Alam. Please explain it. Okay. There is one question also arises from this area. श्रेया आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद ये इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक मैंने भी फ्रेम किया है. And this question is basically all of you, not only for the participant who is presenting the PPT. This is one of the very most important question which most of the time I have seen it has been asked in your examination. So you must know the answer of this question. Please बताइए आप पहले. Sir, Mukesh and Saab-e-Alam both belong to an impoverished section of society. Means basically they No, are. no, Samriddhi, don't read the written context which you have written. Simply उसको read मत करिए. Just give your interpretation. Just leave your copy or the written thing be aside. उसको side रख दीजिए. आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? आपने अगर चैप्टर रीड किया है तो आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे. So basically, Mukesh and Saab-e-Alam both are forced to do labor to help his family, to help the family to make the survival. And as you all seen in the chapter, that Mukesh is working in a glass industry, and later he has a dream in his life to become a motor mechanic. But Saab-e-Alam don't have such ambition because his first aim is to help his family in survival. And they both belongs to a and they both have very bad social condition. So this is the similarity. What are the difference? Okay, now my question is, what is the basic difference between Mukesh and Sahib-e-Alam कह लीजिए, साहब कह लीजिए. What is the difference between Mukesh and Sahab way of thinking and approach towards their life? दोनों ही कॉन्टेक्स्ट को आपने पढ़ा है. मुकेश की कहानी भी आपने पढ़ी, आपने साहिब-ए-आलम के की लाइफ को भी रीड किया, वो कैसे अपनी लाइफ लीड कर रहा था और क्या चीजें हुई उनके साथ, और मुकेश को भी आपने देखा. So the very important question which arises from while after reading both of the pictures, both of the stories, and दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, कुछ आपको ऐसा नजर आया? दोनों की कंडीशन तो पैथेटिक है. Both of them are suffering from the financial crisis. They both are from the bad and poor background. They both are sufferers at their level in different ways. They both are having uh, uh, suffering while arranging the livelihood to survive. लेकिन इनमें इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? ये तो सिमिलरिटीज होगी. इन दोनों के थिंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं नजर आया. अगर आप चैप्टर को Yes, sir. बताइए क्या नजर आया? So Sahabe-Alam don't have any ambition to do something good in his life, but Mukesh has an ambition. He wants to become a motor mechanic. Good. This is the exact answer. Very good. So the answer is कि Sahib-e-Alam is not having any kind of further ambition, further aim, further goal to achieve. He just become trapped. He just become habitual in living that kind of environment in which they are just living for a long period of time, and he is not thinking that how just come out from these kind of surroundings, this kind of environment. He is not doing any effort. जो उसको मिल गया वो उसको बस लेके चल रहा है. इस स्टोरी में फिर आपको पता चला होगा कि एंड में वो किसी और के अंडर में भी काम करने लगता है ना, कोई उसको हायर कर लेता है या ऐसा कुछ इसमें. तो फिर उसके बाद लेकिन जब मुकेश की आप कहानी पढ़ते हैं, व्हेन यू कम्स टू द स्टोरी द पार्ट ऑफ द मुकेश लाइफ, यू फाइंड दैट द मुकेश इज हैविंग अ एम्बिशन इन अ लाइफ.
though the situations are very tough, though the situations are very difficult, and still just creeping in these kind of situation, he never lose hope, he never lose the hope of getting their ambition comes true. उसको इस चीज का होप वो नहीं मतलब खो नहीं रहा था इस चीज को कि मैं कुछ नहीं बन सकता, उसको मोटर मैकेनिक बनना था, वो एम्बिशन उसके साथ चल रहा है. So he has a very strong faith, he is a very strong stand that today or one day that his dream will definitely comes true. ठीक है, तो ये इनकी इस लाइफ में एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के थिंकिंग अप्रोच में. इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर Yes, टू ऑल? sir. ओके, श्रेया फोर्थ इज Yes, देयर और sir. नॉट? श्रेया फोर्थ, दिव्यांशी, उषा, उषा का रिस्पांस नहीं आ रहा है. उषा इज Sir, नॉट she रिस्पॉन्डिंग. left. शी लेफ्ट. व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई शी गॉट लेफ्ट? I श्रेया don't. श्रेया फोर्थ भी नहीं है, श्रेया फोर्थ भी लेफ्ट कर गई है. डोंट नो व्हाट्स द इशू. जब प्रेजेंटेशन किसी का भी हो तो सब लोग प्रेजेंट रहा करिए, ये नहीं कि जब आपका प्रेजेंटेशन है तो आप हैं, अदरवाइज फिर आप नहीं हैं. ये दिस इज नॉट अ गुड सिंबल, इज नॉट गिविंग अ गुड रिफ्लेक्शन. Okay, now I have just write down few questions because we don't have that much time also, our time is going to finish. Let me ask a few important questions. कल मैं अगर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रेडी हैं कल के लिए then it's good, otherwise tomorrow I'll take live session again, and in this live session in that live session the explanation portion is just from my side. ठीक है, अगर पीपीटी प्रेजेंटेशन करने वाले जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अगर वो कल प्रिपेयर कर लेते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज कल मैं कंक्लूडरी क्लास लूंगा इसकी, जस्ट गिविंग यू द कंक्लूजन ऑफ द होल स्टोरी, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बताऊंगा उसकी. सो ओके, नाउ टेल मी समृद्धि, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? The master of the world. मास्टर ऑफ द वर्ल्ड. और कोई वर्ड इसके लिए यूज नहीं हो सकता मास्टर की जगह? मास्टर ऑफ द वर्ल्ड मींस कोई वर्ल्ड का मास्टर कौन होता है? Sir, God of world. Yes, this is the correct word. This is the correct word which you should use. Lord of the world, not master. Master कई तरह के हो सकते हैं ना, मास्टर की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर नहीं नजर आती है. मास्टर उसको भी कह सकते हैं जिसके पास बहुत वेल्थ है, पावर है, सब कुछ है, जो वर्ल्ड पे रूल कर रहा है, उसको मास्टर कह सकते हैं. बट लॉर्ड का वर्ड एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा बड़ा वर्ड है, लॉर्ड से बड़ा कोई वर्ड नहीं हो सकता. तो लॉर्ड इज द मोस्ट बिगेस्ट वर्ड which shows somebody is ruling on the whole world. ठीक है, so sahib alam means lord of the world. Okay, now the Sir, next Lord question of is, universe. हाँ lord of Sir, universe, book lord of में universe. Lord of universe. ठीक है, lord of universe is more appropriate, वो और अच्छा वर्ड है. आपके बुक में क्या दिया है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स दिया है ना? Yes, sir. लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समृद्धि आपने जो स्टार्टिंग की जो स्लाइड शो की है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? Yes, sir. जो आपने स्टार्टिंग की, मैंने देखिए आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन का ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था आपके 10th क्लास से, मैं उस वक्त से आप सबको एक चीज हमेशा बताता आ रहा हूँ, लेकिन वो कभी कभी तो मुझे नजर आती है आपके प्रेजेंटेशंस में, कभी कभी फिर वही लूप होल्स आप लोग दोबारा कमिट, वही मिस्टेक दोबारा कमिट करने लगते हैं. आपको कंटेंट, पीपीटीज में कंटेंट्स बहुत शॉर्ट रखने हैं और कोशिश ये करें कि वो पॉइंट वाइज हो. आपको कंटेंट्स वहां पे पैरा और स्टेंजाज बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कॉपी नहीं कर देना है कहीं से उठा के, या खुद से भी अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह से नहीं कि पूरी चीजें बस उठा के वहां पे ऐसे पुट कर दी, 10, 20, 50 लाइन सामने दिख रही है. आपका एक्सप्लेनेशन पोर्शन फिर कहाँ रह जाएगा?
आप तो सिंपल फिर आपने जो लिखा है आप उसको रीड कर रहे हैं. My this comment is not for only this today's participant, but for all of you who are just planning to show these kind of presentation in future. आप पीपीटी का सिंपल मतलब सिर्फ पॉइंट को जॉट डाउन करना है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको ज्यादा से ज्यादा देना है, इंटरप्रिटेशन अपने वेज में देना है. ठीक है. मैं कल की क्लास में मैंने भी चैप्टर पढ़ा. I have also go through the whole chapter. I have also read the whole chapter very minutely. तो मैंने पैराग्राफ नहीं नोट किए. ये आपको कॉपी दिख रही है मेरी, ये दिख रही है मेरी कॉपी. दिस इज अ रफ वन. दिख रहा है सबको? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. तो ये इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन किए. आपके चैप्टर को मैं पढ़ने के बाद मैंने सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन किए. उसके कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना और कॉन्सेप्चुअलाइज करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. एक बार आपने पूरे चैप्टर को रीड किया, उसके बाद फिर आप अपने से पॉइंट्स बनाइए कि इसमें कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेनेशन देना है. जैसे अगर मैं बहुत एक सिंपल सा पॉइंट लूं, मैंने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया. सबसे पहले इस चैप्टर में जो बात समझ में आती है कि एक स्टोरी है रैक पिकर की, जो पहला पार्ट है आपका, द फर्स्ट पार्ट. तो मैंने पॉइंट में लिखा स्टोरी ऑफ रैक पिकर. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू शो द पीपीटी प्रेजेंटेशन, this point is simply depicted on your slide and it has been written there that the story of rag picker. Now after reading this point, the story of rag picker, now your explanation portion should be started, is supposed to be started. ये नहीं कि आपने ये लाइन पढ़ के आप आगे भाग गए. आपने लाइन पढ़ी स्टोरी ऑफ रैग पिकर, अब इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद से दीजिए, बजाय इसके बनिस्बत इसके कि आपने उसका पूरा एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हुआ है. इट गेट्स द ऑडियंस आल्सो टू फील फेड, टू फील एग्जॉस्टेड, टू फील बोर्ड. ठीक है. अभी तो आपको ये 45 मिनट्स की क्लास मिल रही है ना. इन केस जब आप किसी स्टेज पे खड़े होकर, जब बड़े स्टेज पे जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, तो आप जैसे वहां पे 50-100 पार्टिसिपेंट्स होंगे तो आपको 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलता. तो आप 10 मिनट में अपनी इतनी लंबी चौड़ी स्लाइड किसको दिखाएंगे, कौन देखेगा और कौन पढ़ेगा. अभी तो चलिए हम वन पार्टिसिपेंट्स को इंडिविजुअली इनवाइट कर रहे हैं और आपको इंडिविजुअली एक पार्टिसिपेंट को 30 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, तो आप बहुत आराम से उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं. लेकिन ये प्रोसेस आगे आपका सक्सेसफुल नहीं होगा. ठीक है. बहुत सिंपल सा तरीका है. इससे पता चलता है कि आपने एक्चुअल में बुक रीडिंग की कि नहीं, या सिंपल उसके कहीं से थीम को देख लिया, उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स को देख लिया और उसको आपने वो कर दिया. ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है. और ये ऑनलाइन क्लासेस में जो ट्रेंड जो है इस तरह से कि बस थीम को डिस्कस किया और बस पॉइंट्स को थोड़ा बहुत बता के और चलते बने, तो ये भी ऑनलाइन क्लास का एक ये बहुत बड़ा फेल्यूर है. और मैं इस फेल्यूर को आप से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस में इस फेल्योर के जाल में ना फंसे. ठीक है. तो आप किसी भी चैप्टर को पहले सेल्फ रीड जरूर करें. सेल्फ रीडिंग इज अ मस्ट. देन ओनली जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मिनिमम 10 or 15 points and just try to explain that points from your own. अब एक जैसे मैं और आपसे अगर मैं एक पॉइंट डिस्कस करूँ जो मैंने इसमें लिखा है कि नो स्कूल इन नेबरहुड. इसमें जो ऑथर है, जब उसे कन्वर्सेशन हो रहा होता है साहिब आलम से, तो वो स्कूल के बारे में उससे कोई डिस्कशन होता है, तो साहिब आलम कहता है कि हमारे नेबरहुड में तो कोई स्कूल नहीं है. अब इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इस पॉइंट को फिर आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक बहुत ही इंटेंस लाइन है. इस लाइन को जब आप डीपली समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि साहिब आलम के अंदर जो ग्रीफ है, जो तकलीफ है, जो दुख है, वो इस लाइन में शो हो रही है. वो 2 दिन के बाद जब उनसे मिलता है तो उनसे पूछता है कि आपने स्कूल बना लिया. वो ऑथर अनीस जंग उससे कहती है कि मैं स्कूल जब बना लूंगी तो आप उस पर पढ़ोगे.
तो फिर वो 1-2 दिन के बाद जब उससे मुलाकात होती है तो वो कहता है कि आपने, उससे पूछता है आपने स्कूल बना लिया? तो after listening this statement from that particular boy, the author feel really helpless, really ashamed. वो कहती है कि मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया इस बच्चे से जो जिसे मैं फुलफिल कर ही नहीं सकती। एक दिन में स्कूल थोड़ी ना बन जाएगा, 2 दिन में स्कूल थोड़ी ना बन जाएगा। तो आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज लेट मी Yes, नो, sir. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. ऑल ऑफ यू? समृद्धि, हेलो, एम ऑडिबल? Yes, sir. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से, जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ समझ में आ रहा है? Yes, sir. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक? Yes, sir. ठीक है, तो मेरी इन पॉइंट्स को, मेरे इन टिप्स को याद रखिए। कल की क्लास में मैं इसी तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दे के समझाऊंगा, ठीक है? वो मेरा पार्ट रहेगा ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंटेशन में एक्चुअली हमें करना क्या होता है। दो आपके कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, आपने जहां से भी लिया है कंटेंट, देयर इज नो एन इशू, कंटेंट्स आर रेलेवेंट, very relevant, ठीक है, it's good. And more specifically if I would say, the last portion, the present data, the present scenario which you have depicted in your slides are really very good. आप जरा उस स्लाइड पे दोबारा जाएंगे, लास्ट वाली स्लाइड पे। प्लीज गो टू द लास्ट स्लाइड once again. Yes, sir. Just come to the last slide. हाँ, ये इन्होंने कि बहुत ठीक है, इन्होंने इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं ये बहुत रिलेवेंट पॉइंट है, और जिसमें इन्होंने बताया कि the ministry informed the house that they are implementing the integrated child protection scheme. चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो गवर्नमेंट की का एक बहुत बड़ा इनिशिएशन है, जिसमें वो चिल्ड्रंस को इस तरह के एक्टिविटीज में इंडल्ज होने से बचाने की कोशिश करती है। अब ये स्कीम्स कितनी सक्सेसफुल हैं, कितना फेल्योर है इसमें, ये इसके बारे में तो ये तो दिस इज अनदर डिस्कशन, बट गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, जो जिसमें इस तरह के बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये इन्होंने जो इसमें इंफॉर्मेशन ली है, अच्छी इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, दैट्स गुड। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड गिव यू माय अप्रिसिएशन फॉर डूइंग दैट मच एफर्ट टू जस्ट फाइंड आउट दिस इंफॉर्मेशन, दिस डेटा। इसके पीछे वाले में जाइए जिसमें आपने न्यूमेरिकल बताया है कि कितने लाख वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। अराउंड 3 लाख चिल्ड्रन फोर्स टू बैक, ठीक है, ये एक रफ डेटा है, मोर एक्चुअल में 3 लाख से बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट ये अप्रोक्सीमेट डेटा शो कर रहा है कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे जिनको फोर्स किया जाता है भीख मांगने के लिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्डिंग ब्यूरो, अ टोटल 63,407 in 2016, and this figure goes increase and increase in the upcoming years. 2018 में देखिए 67,134 हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है शायद इससे, हाँ थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा, ये कम इस वजह से हो रहा है इसमें क्योंकि जो एजेंसीज बनी है ये कुछ काम कर रही है, ठीक है। 2016 में ज्यादा था, बाकी उसके बाद ये डिक्रीज हुआ है। ये डेटा फ्लक्चुएट करता रहता है, हो सकता है कि कुछ साल के बाद ये फिर आपको बढ़ा हुआ नजर आए। अगर एजेंसीज अच्छे से काम कर रही होंगी तो सर इंक्रीज हुआ है। 63,000 है ना, 63,000 यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 2017 में, 2018 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ज्यादा इंक्रीज हुआ है 67,000, सॉरी, हाँ 2018 में ज्यादा। यस सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि डेटा फ्लक्चुएट करता रहता है। उसके बाद उन्होंने नीचे कुछ स्टेट्स का भी डेटा ले रखा है, तो ये इंफॉर्मेशन इनकी अच्छी है। अभी ये कितना रिलेवेंट है कितना रिलेवेंट नहीं है इसको एक बार और आप चाहें तो नेट पे चेक कर सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये अप्रोक्सीमेटली ठीक है। यूनियन टेरिटरी दिल्ली की तो मैं हालत जानता हूँ, दिल्ली में तो डेफिनेटली
इसके करीब 6000 के करीब तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ये मिसिंग चिल्ड्रन का डेटा इन्होंने लिया है। ठीक है, तो बच्चे मिस गायब कर दिए जाते हैं और उसके बाद उनको बैगिंग के काम में लगा दिया जाता है। वो बैगिंग माफियाज होते हैं, मैंने कल भी आपसे बताया था। वो उनसे भीख मंगवाने के बाद, बैगिंग करवाने के बाद उनसे वो पैसे लेते हैं एंड देन दे आर जस्ट डूइंग देयर इलीगल एक्टिविटीज चिल्ड्रन को। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा ये एक सर्कल है, बहुत ही विशियस सर्कल है। इट इज नॉट अ वेरी सिंपल सर्कल विच anybody could break it easily. It's a very vicious circle, very broad circle, and it is really very hard to break it and to get interrupt into it. इसमें घुसना बहुत मुश्किल है। हम अपने लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। इन्होंने अपने लास्ट में वो सोसाइटी के रिगार्डिंग भी लिखा था कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। वो जरा स्लाइड दिखाइए मुझे। Not only government, people should also be aware about this and help these children in every possible way to come out of this mental trauma and get। एक हमारी सोशल साइंस की एक ब्रांच है सोशियोलॉजी। ये आपके थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जिसमें चीजें आती हैं। तो इसमें सोशियोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंदर एक और एरिया आता है सोशल वर्क का। तो जो लोग सोशल वर्क की पढ़ाई करते हैं वो थोड़ा सा इन सब पे अच्छा खासा काम करते हैं, उनको इसकी बहुत इंफॉर्मेशन होती है। मेरे कुछ कलीग्स हैं जो इस एरिया में हैं, मैं उनसे कुछ डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, जिनको ये पता चलता है कि जो एडल्ट चिल्ड्रंस हैं या जो बिलो 20 ईयर्स हैं वो भी किस तरह से एडल्ट्रीज के एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी गलत एक्टिविटीज में। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसे इम्प्रूविंग शेल्टर्स बने हुए हैं उनको सुधारने के लिए उन बच्चों को। उसका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं उसको कल आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो लोग इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको सही करने के लिए उस कैंपस में, उस शेल्टर में उनको रखा जाता है और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सो ओवरऑल प्रेजेंटेशन इज गुड, इट्स सेटिस्फैक्ट्री। और जो इन्होंने डेटा लिया है लास्ट का ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें कोई आपको इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने जो स्टार्टिंग के स्लाइड्स दिखाई हैं उन स्टार्टिंग के स्लाइड्स में आप कोशिश करिएगा नेक्स्ट टाइम से कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसका आप ध्यान रखें। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है, आप अपनी तरफ से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Anybody? Okay, so who is going to present tomorrow? दिव्यांशी, are you ready? पूछा तो है नहीं अभी यहाँ पे। सर मेरा नेक्स्ट वीक है ना। नेक्स्ट वीक मैंने आपसे कल इन्फॉर्म किया था कि ट्यूसडे से आपके पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। मैंने कल आपको क्लास में बताया था, आप पता नहीं थी या नहीं थी, मुझे नहीं ध्यान आ रहा। आप कल थी क्लास में? नो सर। तो मैं आपको अभी फिर से बता दे रहा हूँ, ट्यूसडे से आपके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो ट्यूसडे से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस सैटरडे तक का टाइम हमारे पास है। मेरी क्लास वैसे वेडनेसडे तक होती है आपकी इंग्लिश की, बट मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है कि आप सैटरडे तक का आप टाइम ले लीजिए और सैटरडे तक जितने लोगों को प्रेजेंटेशन देना है वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि सैटरडे के बाद फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। मंडे में एक दिन का टाइम मिलेगा तो वो आप अपने प्रोडक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए उसके लिए। ठीक है, और आपके सिलेबस को कल मैंने आपकी ग्रुप पे सेंड कर दिया था, आप उसको पढ़ लीजिए। आपके टेक्स्ट में से ही क्वेश्चन आएंगे, आपके चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और ग्रामेटिकल पोर्शन को इंक्लूड नहीं किया है इसमें फिलहाल, क्योंकि सॉफ्टवेयर, बिकॉज द हैंडलर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर आल्सो नॉट फीलिंग quite comfortable to checking the grammatical portion। ग्रामेटिकल पोर्शन को क्योंकि सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपका टेस्ट होगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इजी टू हैंडल दैट काइंड ऑफ पोर्शन। और सब्जेक्टिव पोर्शन, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें देते हैं तो फिर उसमें आप चेक करने वाले एग्जामिनर के लिए भी प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाई
there is one software implemented by the school authority, NICTEC, and on that particular software you are supposed to give your periodic test. ठीक है, clear? इसके So रिगार्डिंग क्या कोई? ऑब्जेक्टिव्स होंगे? yes yes, only objectives. ठीक है, So सारे सब्जेक्ट्स के लिए या फिर only most this? probably for all subjects. ठीक है, clear? Okay. Yes sir. क्लियर? तो दिव्यांशी, अगर आपको कल प्रेजेंटेशन देना होगा तो प्लीज आप मुझे आज शाम तक इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं कल एक कंक्लूजन इस चैप्टर का एक मेरे पास जो लिखा हुआ है मैं वो आपसे कल सब लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है? और फिर इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। सैटरडे तक जिसको प्रेजेंटेशन देना है वो दे ले और मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट सो दैट आई कुड प्रिपेयर माई सेल्फ ऑल्सो, ठीक है? Okay sir. चलिए, ये तो बातें होगी। और मैं अभी मीटिंग एंड करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट तो हमेशा ही रहता है, अब ये पता नहीं आप लोग इसको क्यों इतना लाइटली लेते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आती बात। ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये हमारे ग्रुप पे टीचर्स कम्युनिटी का जो ग्रुप बना हुआ है स्कूल का, इस पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन हमेशा दी जाती है जो भी ज़रूरी रहती है। तो अभी कल फिर से एक मैसेज आया था कि टीचर्स जो हैं वो अपने क्लास कंसर्न्ड स्टूडेंट्स से बात करें, उनके पेरेंट्स से बात करें, उनको मोटिवेट करें कि वो एडमिशन्स लें, क्लासेस करें और फीस वगैरह जो है वो अपने टाइम पे जमा करें। सी मुझे रियली आई फील वेरी ridiculous to see the entire scenario which has been going on. अगर गार्जियंस मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों के, तो मैं उनसे भी पहले तो मैं आप सबको सादर नमस्कार कर रहा हूँ और सलाम भी है मेरा। तो आप सबसे मेरी एक बहुत ही दिली दरख्वास्त है कि स्कूल की इस क्रिटिकल सिचुएशन में स्कूल अपने लेवल पे जो कुछ भी कर पा रहा है आपके वार्ड्स के लिए, आपके चिल्ड्रंस के लिए, वो करने की कोशिश कर रहा है। तो आप थोड़ा सा मोटिवेट आप भी हमें करें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ऑनलाइन मोड की स्टडी में जो भी कमियां आप लोग को नज़र आ रही हैं वो प्लीज़ प्लीज़ आप हमें बताएं ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये सारा इनिशिएशन हम टीचर्स कम्युनिटी का अपनी तरफ से लिया गया है। बहुत से टीचर्स हमारे ऐसे भी हैं who are not very much well aware, well equipped, well acquainted with the technicalities basically। वो नहीं जानते, बहुत सी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, बट उन्होंने सीखा। किसके लिए सीखा? वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए सीखा कि हमारे स्टूडेंट्स परेशान ना हो लॉकडाउन में और इस पेंडेमिक में, उनकी पढ़ाई हैम्पर ना हो। इस समय प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से ज़्यादा बुरी हालत और दुनिया में किसी की नहीं है, बी श्योर। तो जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, जैसी भी कोशिश कर रहे हैं, आपको उसमें जो भी कमियां लग रही है, मेरी आपसे दिली दरख्वास्त है, दिली गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपको जो कमियां हैं आप प्लीज़ उसको बताएं। स्कूल मैनेजमेंट से आप कांटेक्ट करें, बताएं कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए ताकि वो इम्प्रूवमेंट किए जा सके, ठीक है? अब लाइव मोड की क्लासेस को भी हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बट ये इतना क्रिटिकल है कि ये सभी के लेवल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इसको मैनेज कैसे कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, इसमें कितना टाइम कंज्यूम होता है और क्या चीज़ें होती हैं, दिस इज नोन बाय द पर्सन हु इज हैंडलिंग, बट स्टिल अगर इससे स्टूडेंट्स का भला हो रहा है तो हम हमेशा इसके लिए तैयार हैं। दो आई एम नॉट अ रेगुलर टीचर नाउ, मैं अभी फिलहाल स्कूल में एज अ रेगुलर टीचर काम नहीं कर रहा हूँ, बट मुझसे ये कंडीशन जो है तो ये मैं देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट अपने लेवल पे काफ़ी कोशिश कर रहा है बट गार्जियंस का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो रियली इट्स अ वेरी हम्बल, वेरी मीक, वेरी काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स दैट प्लीज सपोर्ट अस। आप लोग सपोर्ट करें और सपोर्ट आपको सिर्फ यही करना है कि आप जो भी टाइमली आपके जो वीडियोस हैं उसको क्लियर करें ताकि स्कूल रन कर सके। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस लाइव मोड में ये सारी चीज़ें सबके लिए न्यू हैं, तो आप अगर हमसे ज़्यादा कुछ बेहतर जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ जानते भी होंगे डेफिनेटली,
तो आप वो हमें सजेस्ट करें कि आप ऐसे पढ़ाएं, नहीं ऐसे पढ़ाएं, आप ये ऐप यूज करें, आप ये एप्लीकेशन यूज करें, आप ऐसे चीज़ों को हैंडल करें, then we definitely accept your suggestion and try to implement it also. उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लीज ये जो नोटिस बार बार आते हैं हमारे पास, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार आपसे इन चीज़ों के ऊपर पी और इन सब चीज़ों पे बात करें। ठीक है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें अपने लेवल पे। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट के बाद मैं एक लाइव सेशन टीचर्स और पेरेंट्स के लिए एक अलग से मैं उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको प्रिपेयर कर पाऊँ। इफ़ आई गेट टाइम, सफिशिएंट टाइम, then I'll just try to arrange one live meeting for especially for the school community, for the parents with the school community and teachers के साथ, स्कूल मैनेजमेंट के साथ और पेरेंट्स के साथ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक लाइव सेशन हम कंडक्ट करवाएं जिसमें इंटरेक्शन हो जाए टीचर्स का, पेरेंट्स का और स्कूल मैनेजमेंट का, कि कम्युनिकेशन गैप कहाँ पे है, क्या कमियां हैं, उसको हम कैसे पूरा करें। nobody's 100% perfect। सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। स्कूल में जो भी, मैं आपसे दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइव मोड में जो भी कमियां आपको नजर आ रही हैं, इस ऑनलाइन मोड में जो हम जिस तरीके से स्कूल पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़वा रहा है, उसमें जो कमियां हैं प्लीज आप अपने सजेशन दीजिए, बजाय इसके कि बिल्कुल ही स्किप कर जाए कि नहीं हमें इस मोड को एक्सेप्ट ही नहीं करना। तो इस मोड को देखिए, एक्सेप्ट न करने का जो डिसीजन है ये किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, किसी के लिए भी, और मोस्ट डेंजरस फॉर द स्टूडेंट्स। आप समझ सकते हैं कि एक साल कैसे गुजर गया, और इस लाइव मोड की बदौलत जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा वो ये लाइव मोड। अब अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरा मैसेज सभी टीचर्स कम्युनिटी की तरफ से आप लोगों को, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके गार्जियन से, आपके पेरेंट्स से एक हम सेपरेट मीटिंग स्कूल मैनेजमेंट की, डायरेक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे एडमिन सर हैं, प्रिंसिपल सर एंड आवर डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स, आई विल ट्राई टू मैनेज वन सेपरेट मीटिंग between them so that they could interact with each other, they could share their thoughts with each other and try to come out with some good solutions। ठीक है, आप अपने लेवल पे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, उनको बताइए कि ये इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और आपके टीचर्स, अभी मैं इंडिविजुअली मैं किसी को अब कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया हूँ आप लोगों को मोटिवेट करते करते। तो प्लीज़ just try to understand the scenario. Okay, fine. Thank you so much for having such a successful session. All the participants, thank you so much. And tomorrow also, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर लेंगे, अदरवाइज मैं कल इस चैप्टर का एक कंक्लूडरी रिमार्क आपको दे दूंगा। ठीक है, एंड देन वी विल स्टॉप दिस डिस्कशन। ओके, so shall we leave the meeting? Yes, sir. सब लोग बता दें कि मीटिंग खत्म कर दें या कुछ और कहना चाहते हैं आप? Yes. श्रेया सेकंड, समृद्धि, shall we stop? Yes, sir. ओके, ठीक है, मैं आपके इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ी देर में यूट्यूब पे सेंड कर दूंगा और आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा लिंक। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू, Thank you, sir. हैव अ गुड डे, Thank you, sir. हैव अ गुड डे।